Assalamu alaikum. Welcome to the 15th lecture of logistics management. I'm the guy you see every week or every day, and I'm the guy who bores you to sleep every time there is a lecture. Still, there is no way out for both of us. You have to take this course and you have to pass this course. But I would try my level best so that you can. Why I repeat and why I am slower in discussing various concepts is so that you can grasp them strongly, so that you can be well aware of all the concepts associated with logistics management. So when you talk with somebody regarding logistics or supply chain, you know the key terminologies, you know the key concepts, and you understand that how various mechanisms are played in this area. Then another important aspect, that this subject of logistics management is also very strongly associated with operations management. When we talk about the location, specifically the facility location area, it is very important to understand various concepts in this area as well, to associate it with the operations management and operations research side. Now, going on, in the last lecture, we discussed basically two methodologies. In one case we discussed the advanced technique of center of gravity method. What I've observed is that in my last few lectures, I discussed every terminology almost 3 times. First I explained the terminology to you, then I summarized at the end of the lecture, and then when I'm starting the next lecture, I summarize it again. So then that is the way how I try to enforce these concepts imprint them in your mind so that you can recall them whenever you want. We discussed an advanced example of center of gravity method because in a lecture before this one, maybe lecture 13, I only explained that in a simpler manner. But in the advanced technique, we also discussed the cost of transportation also, because in the first technique, in the first example of center of gravity method, we highlighted that the cost of transportation is directly proportional to the volume as well as the distance. But now we assume that the cost of transportation is included in that. So now we used an advanced formula. Further, with the help of this formula, we derived the total cost of the location or the gravity point that we highlighted as the location of the warehouse. Both of these examples were associated with the warehouse. Now in the formula was a little different, but mechanism was almost the same. Formula was little different in terms of the notations, but the mechanism was same. The only inclusion was the cost of transportation. Then I discussed the factor rating method. I really, you can say, highlighted the importance and good points of the factor rating method. The first important aspect of this method was that you can identify key success factors, and you can identify multiple key success factors based on your business. And when you are finalizing a location, you know that these are the areas for which these are the characteristics which are required in a specific location. Be it, for example, labor, be it environmental standards, it can be transportation network, it can be general infrastructure, it can be the attitude of the population, it can be demand, it can be supply of the raw material, it can be, for example, cement industry, it can be availability of raw material, it can be availability of hilly terrain so that you can extract rocks and make gravel out of it. So it can be anything. So you can identify any key success factors and any number of key success factors, and then out of 100 you can rank them. You can give factor weights to them, that out of 100 these are the weights, that this is how important these weights represent the importance of that specific factor for your success. Then between multiple locations, it can help you making a choice between multiple locations, and you give score to each location based on that factor out of some defined total score. If you define total score to be 100, you can give them 99 or 100 or 70 or 80 or 60. Now when you, or any other number less than 100, when you give them score, then you multiply that score of that specific region with the factor weight, and you make a sum column wise for each location, and the location with the highest score is the one which needs to be chosen from this factor rating method. The one drawback that I highlighted for this factor rating method was that basically factor rating method is very subjective in terms of listing the key success factors, in terms of assigning weights to key success factors, in terms of assigning the score
to different location based on these key success factors. They are very subjective. Two managers from a same firm at a same position might assign different, might list different key success factor, might give different weights to those success factors, and might give, for example, different score based on those locations. But generally, it is a very useful method because based on this method, it is one of the only methods that would allow you multiple dimensions to look at. Center of gravity method actually, unfortunately, only considers the cost of transportation. But this method can allow you to use multiple dimensions to analyze a location. Then I guess we are coming to the last method which we are going to discuss in this course in terms of the facility location. Facility or a warehouse or anything, locating anything related to a business entity, where it might be a warehouse, it might be a facility, a production facility. This is the last method, cost, profit, volume analysis. This one is basically, it is used to identify the most optimal location for a production facility for a business entity. There are three steps. You basically determine the location where the cost of production is minimum. There are basically two major portions of production cost. One is the fixed cost and the other one is variable cost. Fixed cost, I hope you know the definitions of fixed cost and variable cost. Fixed cost is the one which is incurred whether or not you are using that facility for production. If we install, for example, a CNG station in one location in Lahore or in Karachi, then we have to pay rent for that facility. There is licensing fee, there is certain amount of electricity charges, fixed charges that you have to pay whether you are using electricity or not. These kinds of things are fixed costs which are paid whether the production is on way or not. Then the other one is variable cost. Variable cost is the one which changes with the production. When you increase the production, variable cost might go up. When you produce more, variable cost is higher. When you produce less, variable cost is lower. Now, then what we do is we can use a graphical analysis for this also. It would be more useful for that. That is how we would see our analysis. We will conduct our analysis. We plot the cost of each location. We identify the locations. We identify fixed cost and variable cost for each location, and then we plot them and see that this is the prospective volume. This is the expected volume that we are going to produce, for example, 20,000 units. Now, which facility would give me the lowest cost? At which facility would I incur? At which location would I incur the lowest cost when I produce that much volume? Now, when we move on with this example, you would understand it in a much better manner. Let's assume that there are 3 locations for a firm. Its expected volume is 2,000 units, right? The price that it sells for is $120. The unit, for example, these are you can say bowling balls that it is producing. Any item, consider any item. Just consider an item, and it might be a bowling ball. Its selling price is $120, and the expected volume that they are going to produce, that is 2,000 units. That what they have forecasted up till now, that in terms of demand. They have 3 locations. One location is Akron, the second location is Bowling Green, and the third location is Chicago. These are listed in terms in the left column, that is as per cities. Then there is a fixed cost. Fixed cost is 30,000 for Akron, 60,000 for Bowling Green, and 110,000 for Chicago. Then there is variable cost. Variable cost is $75 for Akron, $45 is for Bowling Green, and $25 is for Chicago. Do you see that the fixed cost and variable cost are moving in opposite direction? It is basically a logical decision while making this example, while creating this example, to make you understand the concept of cost, profit, volume analysis. Now, ये किन ग्राउंड्स पे किया गया? क्योंकि जब आप एक सेटअप लगाते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी इनिशियल मशीनरी में या इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा सेटअप लगाते हैं जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा आपकी इनकर होती है, तो नॉर्मली आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है. और जहाँ पे आप फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी करते हैं, वहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा इनकर होती है.
तो बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इनको ऐसे किया गया। फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ पे 30,000 है वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 75,000 है, जबकि जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 110,000 है वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 25,000 है। जहाँ पे आपने फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा इनकर करनी है वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपकी लोअर हो जाती है, जहाँ पे आप फिक्स्ड कॉस्ट कम इनकर करते हैं वहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी एनी टाइप ऑफ कॉस्ट, इट इज़ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इट कैन बी कॉस्ट in terms of labor, it can be cost in terms of for example paying fees to environmental protection agencies, government taxes, it can be transportation cost। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा ये कॉस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है वॉल्यूम के साथ। फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट ताल्लुक है प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ। जितना ज़्यादा आपका प्रोड्यूस करते हैं उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट इनकर होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ऑलवेज रिमेंबर दैट, इन टर्म वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि आप प्रोड्यूस करेंगे तब आप लेबर हायर करेंगे, आप प्रोड्यूस करेंगे तब आपके इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का एक्सपेंस होगा, आप प्रोड्यूस करेंगे तब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे तो आप टैक्सेस इनकर करेंगे, आप प्रोड्यूस करेंगे तो आप रॉ मटेरियल मंगाएंगे। So that is why variable cost is multiplied by volume। जितना ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बाय द वे चेंज होगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहे हैं दैट वेरिएबल कॉस्ट जो वॉल्यूम से एसोसिएटेड है, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम निकालते हैं तो हम एक पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ, क्योंकि अभी अगर ये 75,000 है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें दैट वुड बी 7500। अगर आप फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट वुड बी 7500 प्लस 7500 दैट वुड बी 15 अराउंड 15,000। सो yes exactly 15,000। so the point is that ये आपके सामने एक हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिकली आपके सामने 3 लोकेशंस है जिसमें से आपने चूज करना है। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इज़ $120, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो आपने डिफाइन कर लिया वो 3000 है। आप लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट एक लोकेशन में डिफाइंड है एक्रोन में, उसी में लोकेशन में वेरिएबल कॉस्ट भी डिफाइंड है। आपका बॉलिंग ग्रीन में फिक्स्ड कॉस्ट डिफाइंड है, वेरिएबल कॉस्ट भी डिफाइंड है। शिकागो में फिक्स्ड कॉस्ट भी डिफाइंड है, वेरिएबल कॉस्ट भी डिफाइंड है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन अभी हमने 2000 यूनिट्स एज्यूम किए हैं। टोटल कॉस्ट इनकर होती है कितनी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू द वॉल्यूम, यानी कि 30,000 प्लस 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2000। आपने पहले 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2000 किया, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड किया 30,000, तो दैट वुड बी टोटल कॉस्ट। यानी कि जब आप 75,000 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 150,000। 150,000 plus 30,000 is 180,000, that is represented as total cost over there। नीचे ये आपकी स्लाइड जो सब डिस्प्ले हो रही है उसके सामने नीचे ये फार्मूला दिया गया। इट इज़ अ वेरी कॉमन सेंस फार्मूला, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। नाउ ये उसका ग्राफिकल एनालिसिस है। नाउ इफ यू लुक एट द स्लाइड you would see the 3 different cost curves. The visual analysis would be more easier. Now if we saw the table in the last graph, and basically the cost was lowest at Bowling Green at the volume of 2000, right? But let us analyze that graphically also. Now the Bowling Green is still lowest. Now I hope you understand these cost curves. Now if you look at on the y-axis there is annual cost. If you look at x-axis, there is total volume that is being produced. Based on that, there are 3 cost curves. The red cost curve is for Chicago cost curve, which had the highest fixed cost. The y-axis represents why it is touching, the intercept is at y-axis because intercept is actually the fixed cost. Chicago Green had a fixed cost of 110,000. Chicago had not Chicago Green, but Chicago had a fixed cost of 110,000. Bowling Green had a fixed cost of 60,000. Akron had a cost curve of 30,000. That's why these lines, the line of the green line of Akron cost curve is touching at 30,000. That is its intercept. And as I said, that when the fixed cost is lower, the variable cost would be higher. On the other hand, for Chicago, the fixed cost is at 110,000 and the variable cost curve, because of variable cost, its slope is a little flatter. That is why it is lower than Akron cost curve. Bowling Green cost curve is the blue line.
which is basically extending from 60,000 and onwards. 60,000 is basically the intercept, and it is the fixed cost. Now there are three big dots above 2,000 because that is the production volume we had defined. Now what is the advantage of these cost curves? You can define any quantity, any volume that is going to be produced, and based on that any volume you can define which facility should be utilized. This is basically the purpose of cost volume profit analysis, because then considering your the cost of production and the volume that you're going to produce as well as the price of the product, you can define where you would be earning maximum profit. If the price of the product is $120, that has already been defined, that would mean that you would be earning maximum profit at the point where the cost of production is minimum, because that would increase the gap between price and the cost, and that would be the profit automatically. Profit is price into quantity minus the total cost. So if we look at this, the Akron cost curve is very steeper. It starts at 30,000 and it goes above the green line. Basically it goes above all the cost curves. Then Bowling Green is little less steeper. It starts at 60,000 and extends onwards. Then the most flattest, or rather relatively flatter curve, is Chicago cost curve, which starts at 110,000 and it extends from there. Now if we are producing different volumes, the advantage of this cost profit volume analysis is that we can evaluate different production facilities based on different production volumes. If we are producing around 500 units, Akron is the lowest one. Below 1000 units, Akron is lowest. From 1000 unit to 2500 units, Bowling Green is the lowest cost curve, which is the blue line. Right? There are dotted lines that are representing these brackets, as well as it is specifically mentioned that from 0 to 1000, the quantity of 0 to 1000, Akron is the lowest cost. If you locate your facility at Akron, then it would have the lowest cost. If you locate your facility at from Bowling Green, then optimal volume would be 1000 to 2500 units. If you want to produce more than 2500 units, then Chicago would have the lowest cost curve. Now since based on this cost profit volume analysis, Bowling Green has the lowest cost. You can also include, because it is total cost, it is the cost of production specifically over here in terms of fixed cost and variable cost. You can also include transportation cost as well in that, in terms of variable cost, because when you are producing, you are distributing also. So if you include your transportation cost, or inbound transportation cost for the raw material, and outbound transportation cost of for example your finished product, then that would simply mean that you have considered all the costs involved and you would be minimizing the total cost of production as well as distribution. So the total cost of the product distributed in the hands of the customer from the point where the raw material originates to the point where the product is delivered, if you minimize that cost, then based on the volume that is being produced, Bowling Green would be the lowest cost for the quantity of 2000. You can identify any quantity based on this analysis. There is a huge advantage of cost profit volume analysis, because this analysis actually considers all the types of costs. As I just said, the transportation cost is basically included in this. That is why this location mechanism is somehow better than for example center of gravity method, because center of gravity method only considers the transportation cost, but this method also includes for example cost associated with that facility, taxation or environmental charges, or for example cost of labor, cost of electricity in different various locations. That is how you can calculate the lowest cost location. In order to identify these locations, there must be some other method at the back end. As we said that it would be very difficult to identify an optimal location for a warehouse, an optimal location for a production facility. You can also use this method for identifying an optimal location for a warehouse as well. So if you want to identify an optimal location, what you need to do is you need to use multiple methods.
you might need to use multiple method. First, you might need to use the factor rating method. Based on that, you rate different areas and you identify, and then based on the identified different areas, you can conduct a cost profit volume analysis, which is rather a more you can say technical or more data oriented technique rather than subjective judgment. Because in factor rating method, there was major part was subjective judgment of the managers who actually conduct the survey, who identify the various factors, and we assign weights to various factors. But once you have identified certain locations, you can also conduct a cost volume profit analysis based on the fixed cost being incurred in those areas. For example, prices of lands, for example, government fees and licenses, and then you can include the variable cost in that. And variable cost multiplied by the volume that is being produced, that would represent your demand for for different various regions, and based on that you can identify an optimal location. And in this case, the optimal location for the specific quantity, mind you that in cost profit volume analysis, it is very necessary to identify a specific quantity that is to be produced, or that is to be supplied, that is to be produced from that manufacturing facility, or that is to be supplied from that warehouse. If you identify that volume, then only then you can use the cost profit volume analysis to conduct to identify one of the lowest cost locations. But when that when that volume changes, like in this case, if the volume would increase in future from 2000 to 3000, then this analysis won't be that useful for identifying the initial location. If the volume changes, then you need to relocate, and then in case of relocation, there are multiple other costs involved. Okay, we have discussed three major techniques of identifying a location for a firm in terms of its location strategy, and then there are various issues in which cases the firms need to identify multiple locations. Now there are various multiple locations methods, because these are more complex problems that firms have to face. It involves trading off certain costs, because when you are identifying different locations, you are actually trading off various costs, just like we discussed that you trade off between inventory cost and transportation cost, and we basically discussed the total cost concept, that we trade off between various costs to see which is the cost which minimizes the total cost. So this is a similar, because firms go through a similar mechanism when identifying a location. Transportation inbound and outbound from the facility, then storage and handling cost, then inventory carrying cost, then production and purchase cost, and facility fixed cost. ये सारी वो cost हैं जो firms आपस में trade off कर रही होती हैं जिनका. जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में भी देखा, जहाँ एक फैसिलिटी की फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती है, वहाँ पे उसकी वेरिएबल कॉस्ट लोअर हो जाती है. इट इज़ अ ट्रेड ऑफ. जहाँ पे फर्म जो है अपना एक बड़ा वेयर हाउस एस्टेब्लिश कर लेती है, तो उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है. सो दैट वुड मीन कि ये कॉस्ट का ट्रेड ऑफ है. जहाँ पे फॉर एग्जांपल इट माइट बी कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट अपनी फॉर इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल लोअर कर रहे हो, कि जी रॉ मटेरियल यहाँ पे करीब अवेलेबल है, तो आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी की कॉस्ट ऊपर चली जाती है. अगर आप प्रोडक्ट डिलीवरी की कॉस्ट लोअर करने के लिए मार्केट करीब लोकेट करते हैं, आपके रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी या रॉ मटेरियल एक्सेस की कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाती है. इसी तरह आपकी स्टोरेज हैंडलिंग कॉस्ट भी आपस में स्टोरेज हैंडलिंग कॉस्ट भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ ट्रेड ऑफ हो सकती है. तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेड ऑफ्स. और ये ट्रेड ऑफ्स किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है? दीज ट्रेड ऑफ्स आर सब्जेक्ट टू कस्टमर सर्विस कंस्ट्रेंट्स एंड फैसिलिटी कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस. You see the complex problem over here, that firms face multiple types of trade-offs which are constrained by customer service levels that they have defined, or which are constrained by the facility capacity restrictions. तो इनके बेस पे आपने उन लोकेशंस, आपने डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स देखते हुए आपने लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है. फिर देर आर मल्टीपल मैथमेटिकल मेथड्स आर पॉपुलर फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम. जब मल्टीपल लोकेशंस के जो मेथड्स हैं उनको आइडेंटिफाई, डिफरेंट लोकेशंस आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं, क्योंकि देर फर्म्स माइट लोकेट इन डिफरेंट लोकेशंस. आप फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी मल्टीपल लोकेशंस पे लगा सकते हैं. कि आप शायद इंटरमीडिएट गुड एक जगह पे प्रोड्यूस करते हैं, उसको आगे आप पैकेजिंग किसी और जगह पे कराते हो, डिस्ट्रीब्यूट आप किसी और जगह पे कराते हो. इट इज़ हाईली पॉसिबल. So that would mean कि
the aim of these mathematical methods, techniques based on these techniques based on mathematical methods is to search for best combination of facilities to minimize the total cost, and to do so with minimal computational time, कि आपको calculate करने में ज़्यादा time ना लगे लेकिन आप costs को minimize कर लें. And the point is that these analyses do not require an enormous amount of data. So there is another method which is heuristics, again another which is basically based on location cost trade-offs. Different types of cost को आप trade-off करें, उसकी हम example देख लेते हैं, then you would understand better. और फिर एक interesting चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, that it is not necessary कि आप किसी एक method के ऊपर rely कर लें. You can use multiple methods to identify one single location. So this is location cost trade-off, or heuristic is one of the methods. Heuristic is basically based on somehow your knowledge, and आप basically ideal location rule of thumbs के base पे चल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे methods, for example जब हम लोग बात करते हैं factor rating method की या center of gravity method की या for example cost profit volume analysis की, तो उसमें आपकी intuitive judgment required होती है. जैसे for example center of gravity method might tell you कि आप लाहौर में locate कर जाएं, लेकिन लाहौर में किस जगह पे locate करें, that is very difficult to analyze. तो फिर वहाँ पे आपके कुछ इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, जिसके बेस पे आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे यू कैन मेक सर्टेन जजमेंटल कॉल्स रादर. सो बेसिकली जो इस ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वी नीड टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट. अब इसके अंदर आपको 4 किस्म के कर्व्स नजर आ रहे हैं. एक आपकी इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नजर आ रही है, विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. दूसरी तरफ आपकी इन्वेंट्री कैरिंग एंड वेयर हाउस कॉस्ट नजर आ रही है, विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, और इट इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. फिर आपकी वेयर हाउस की फिक्स्ड कॉस्ट आपको नजर आ रही है. जो आपकी इन्वेंट्री कैरिंग एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है. जो आपकी दूसरी कॉस्ट है वेयर हाउस की फिक्स कॉस्ट है. अब एक चीज नजर आ रही है कि जितने नंबर ऑफ वेयर हाउसेस लेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो स्टेप्स वाला ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप एक और वेयर हाउस लेते हैं, फर्स्ट वेयर हाउस पे जो फर्स्ट उसका इंटरसेप्ट है एट एक्स एक्सिस, सेकंड वेयर हाउस पे एक और फिक्स्ड कॉस्ट आप इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज एक और वेयर हाउस आपने ले लिया, फिर आपने थर्ड वेयर हाउस ले लिया, तो स्टेप्स में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करती जा रही है. जब तक आप 2 वेयर हाउस रखेंगे, एक वेयर हाउस रखेंगे, एक कॉन्स्टेंट कॉस्ट उस पर इनकर होगी, पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के. लेकिन जैसे ही आप सेकंड वेयर हाउस एक्वायर करेंगे तो वो फिर सेकंड से थर्ड वेयर हाउस लेने तक आपकी कॉस्ट फिक्स्ड हो जाएगी. ये वेयर हाउस की फिक्स्ड कॉस्ट है, जो लेट्स एज्यूम कि जो उसका आप रेंट पे करते हैं, ये वो कॉस्ट है. एक अगर फॉर एग्जांपल एक फिक्स रेट के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपने $1,000 के ऊपर आपने $10,000 के ऊपर एक वेयर हाउस लिया है पर मंथ के ऊपर. अगर आपके पास एक वेयर हाउस है, आपने 10,000 पे करना है. 1 से 2 वेयर हाउस के दरमियान आपने 10,000 ही पे करना है. जैसे ही आप दूसरा वेयर हाउस लेंगे आपने 20,000 पे करना है. और 20 आपने 2 से 3 वेयर हाउसेस के दरमियान, जब तक आप 2 वेयर हाउसेस रखेंगे, आपने 20,000 ही पे करना है. थर्ड वेयर हाउस पे आपने 30,000 पे करना है. इसीलिए ये स्टेप्स की शक्ल में ये ग्राफ जो है, ये लाइन बेसिक रादर ये कर्व वेयर हाउस की फिक्स्ड कॉस्ट है. ये हर स्टेप जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एक और वेयर हाउस टेकअप कर लिया. फिर आपकी जो इनबाउंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो क्यों रिड्यूस हो रही है. जितने ज़्यादा आप वेयर हाउसेज लेते जाएंगे, आपकी वेयर हाउस की फिक्स्ड कॉस्ट तो इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी. बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइंग, यू आर मेकिंग मल्टीपल सोर्सिंग पॉइंट, जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को कह सकते हैं स्टोर कर सकते हैं इन्वेंट्री में, और वहाँ से आपकी हर पॉइंट से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. अगर आप लाहौर से यहाँ लेके आएंगे फॉर एग्जांपल, हर बार प्रोड्यूस करके यहाँ आके इस्लामाबाद या रावलपिंडी में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर होगी. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल वेयर हाउस यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिक्रीज कर जाती है. तो दैट इज़ वाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वान्टिटी ला के यहाँ पे स्टोर कर देंगे, रादर दैन जितनी डिमांड है उधर आप उतनी लेके आएँ हर बार. तो इसी वजह से फॉर्मूले डिफरेंट लोकेशन से वेयर हाउसेज एस्टेब्लिश किए होते हैं. अगर पाकिस्तान के अंदर किसी एक नेस्ले का देख लें, इट मस्ट हैव मल्टीपल वेयर हाउसेज. पेप्सी और कोक कंपनी की मल्टीपल बॉटलिंग फैसिलिटीज़ हैं, वेयर हाउसेज हैं, जहाँ पे आपकी जो रेगुलर बॉटल है फॉर एग्जांपल कोक की, डिस्पोजेबल वगैरह तो आती हैं, रेगुलर बॉटल जो हैं कोक की और पेप्सी की, वो स्टोर करते हैं वहाँ पे एम्प्टी बॉटल्स को,
और भरी हुई बॉटल्स वहाँ पे पहुँच जाती हैं और वहीं से खाली बॉटल्स उठा के वापस की जाती हैं। मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं और उन वेयर हाउसेज से डिफरेंट रीजन्स की डिमांड वो फुलफिल करते हैं। अगर यही कोक की बॉटल हर बार कराची से फॉर एग्जांपल आनी हो लाहौर या इस्लामाबाद, तो जितनी अगर उन्होंने 10,000 बॉटल्स की डिमांड की तो अब कराची से चलाएं 10,000 बॉटल्स अब यहाँ पे आके सप्लाई करें। अगली दफ़ा उन्होंने 5,000 डिमांड किया, 5,000 ला के सप्लाई करें। दैट वुड बी कॉस्टली, बजाय इसके कि आप एक ही दफ़ा अगर आपके ट्रक की कैपेसिटी 20,000 है तो 20,000 बॉटल ला के रख दें, आपका ट्रक फुल लोड के ऊपर आएगा। और हमने पहले ये वी हैव डिफाइंड दैट कि जितना फुल लोड के ऊपर ट्रक होगा अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर चलेगा, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। दैट वुड मीन कि आप एक ही दफ़ा 20,000 ला के रख दें, जब 10,000 की डिमांड की आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 5,000 की डिमांड की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर दोबारा आप 20,000 वहाँ पे फुल कर दें, राइट। तो बेसिकली आपकी वेयर हाउस बढ़ने के साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, बट ऑन द अदर हैंड आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इन्वेंट्री कैरिंग एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। उसकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप स्टोर्स बनाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी रखते जाएंगे, जितना बड़ा वेयर हाउस बनाएंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब व्हाट यू नीड टू डू इज, ये कॉस्ट का दो का ट्रेड ऑफ है, 2-3 कॉस्ट का, वेयर हाउस कॉस्ट और वेयर हाउस की वेरिएबल कॉस्ट का ट्रेड ऑफ है, आपकी वेयर हाउस की फिक्स्ड कॉस्ट और वेयर हाउस की वेरिएबल कॉस्ट का ट्रेड ऑफ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ। और आपने क्या करना है, यू नीड टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। आपने टोटल कॉस्ट कर्व को देखना है, जिस जगह पे टोटल कॉस्ट कर्व अपने मिनिमम के ऊपर है आपने वो वाला पॉइंट इस्तेमाल करना है। देन देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल यूज। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल्स हैं नॉर्मली किन सिनेरियोज में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ ट्रक मेंटेनेंस टर्मिनल्स, देयर आर ट्रकिंग एजेंसीज, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रकिंग एजेंसीज जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये ट्रकिंग एजेंसीज डिफरेंट रीजन्स में कंट्री के स्प्रेड अलॉन्ग अपने इनके मूवमेंट्स होती हैं जहाँ ये भिजवाते हैं। तो दे माइट नीड टू एस्टैब्लिश मेंटेनेंस टर्मिनल्स ऑफ वेरियस ट्रक्स। तो वो अपनी उस मूवमेंट के बेस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड यूज करते हुए जहाँ पे उनको सबसे मिनिमम कॉस्ट इनकर होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि मूवमेंट कॉस्ट, उधर अपने मेंटेनेंस टर्मिनल्स एस्टैब्लिश करेंगे। क्योंकि इन सर्टेन केसेस दे माइट टू डिस्पैच मेंटेनेंस फैसिलिटीज टू सम ट्रक दैट नीड्स रिपेयर व्हाइल इट वाज ऑन मूव। अब वो टर्मिनल उस टर्मिनल के ऊपर नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली देयर इज अ कॉस्ट इनकर्ड बेस्ड ऑन दैट, तो वो यूज कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज सच एज ऑफिसेज एंड पुलिस एंड फायर स्टेशंस। अगेन फायर स्टेशंस ने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, आप कभी देखें कि एक सिटी के अंदर एक फायर स्टेशन जो है वो डिफरेंट एरियाज की उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। इसी तरह पुलिस स्टेशंस भी होते हैं। इसी तरह पुलिस स्टेशंस के केस में उनकी क्योंकि डिफरेंट जुरिस्डिक्शन होती है तो डिफरेंट जगहों पे वो लोकेटेड होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड उसके लिए भी यूज़ किया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन ने कहाँ पे सर्विसेज देनी है, एक फायर स्टेशन ने कहाँ पे सर्विसेज देनी है, एक पब्लिक सेक्टर ऑफिस ने पब्लिक फैसिलिटी जो लगाई जाती है उसने कहाँ पे सर्विसेज देनी है। आप उसके लिए उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन लोकेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, just similar to these police stations and fire stations, medical facilities भी इसी तरह कि public medical facilities किस किस region में दी जाएंगी। Then location of most any facility where transportation cost rather than inventory carrying cost and facility fixed cost is the driving factor in location। हमने एक चीज़ देखी, center of gravity method basically focuses on the transportation cost based on the volume and the distance। तो हर ऐसा केस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है रादर देन एनी अदर थिंग, ये खास तौर पे वेयर हाउसिंग या इन्वेंट्री कॉस्ट से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड वुड बी द ऑप्टिमल मेथड कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें अपनी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी डिफाइन करने के लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बहुत हाई है, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर होल बिजनेस वेंचर, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर इन दैट केस आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को के ऊपर फोकस करेंगे। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा पेप्सी और कोक एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने मल्टीपल वेयर हाउसेस बनाए हुए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ये ज़हन में रखिएगा कि उसमें लॉस्ट कस्टमर की कॉस्ट भी शामिल है। अगर फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी या कोक वाले एक जगह पे अपनी प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते और उनका कंपेटिटर उस जगह पे प्रोडक्ट पहुंचा देता है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगी।
एंड देयर इज़ हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, देयर इज़ अ हाई रिस्क कि वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर जो है उसका लॉयल कस्टमर बन जाए बाद में। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर फॉर एग्जांपल हम पेप्सी कंपनी की बात करते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है। दैट इज़ वाई दे हैव एस्टैब्लिश्ड मल्टीपल वेयर हाउसेस। अगर ये सारे वेयर हाउसेज आप वाइप आउट कर दें उस सिनेरियो में से, तो इसका मतलब है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहीं से उन्होंने हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है खास क्वांटिटी। लेट्स एज्यूम दैट द पेप्सी बॉटलिंग प्लांट इज़ इन हतार। अगर वहीं से उन्होंने सप्लाई देनी है पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और सारे हिली एरियाज़ और नारायण कागान और इस सारे रीजन को, और दूसरा प्लांट सिंध में है, एक हर प्रोविंस के अंदर अगर वो एक प्लांट लगा लेते हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद इन दैट प्रोविंस बहुत हाई होगी। तो वो उस कॉस्ट का ट्रेड ऑफ करने के लिए दे वुड नीड मोर वेयर हाउसेस, और उन वेयर हाउसेस को देखने के लिए, सिंस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज द मेजर चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट रादर देन द वेयर हाउस कॉस्ट, तो फिर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड वुड बी एन आइडियल मेथड टू फाइंड आउट दैट। एज अ सजेस्टर ऑफ साइट्स फॉर फर्दर एवेल्युएशन, एज आई सेड अर्लियर कि फैक्टर रेटिंग मेथड के लिए, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस के लिए आप कभी एक मेथड पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। What you need to do is you need to consider multiple methods. One of the methods is center of gravity method. Center of gravity method can suggest certain locations to for other methods for evaluation. आप इस डायरेक्शन में, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड एक मैथमेटिकल मेथड है, जबकि आपका जो फैक्टर रेटिंग मेथड है वो एक सब्जेक्टिव मेथड है। कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो फॉर एग्जांपल एक आपका डाटा ओरिएंटेड या कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड है, प्रोडक्शन कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकता है लोकेशंस को, प्रपोज कर सकता है लोकेशंस को, देन यू टेक दैट एंड यू यूज फैक्टर रेटिंग मेथड टू कंडक्ट एन एनालिसिस। देन यू ऑल्सो माइट, जब आप फैक्टर रेटिंग मेथड से एनालिसिस कर चुकते हैं तो जो आपकी चंद लोकेशंस आइडेंटिफाई होती हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड से या आपके दूसरे मेथड से, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड से आपने एक लोकेशन या मल्टीपल लोकेशंस निकाल ली, उसके बाद उसका आप फैक्टर रेटिंग एनालिसिस भी कर लें और आप कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कर लें। या देयर आर अदर मेथड, सिमुलेशंस भी हैं, ह्यूरिस्टिक्स भी है, जो हमने फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर वन मल्टीपल इंटीजर प्रोग्रामिंग दैट इज मोर रिलेटेड टू अ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एनालिसिस। It would need more technical skills. ये भी वो मेथड है जो आप लोगों को ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। A method used commercially has good problem scope, can be implemented on a PC. Running times may be long and memory requirements are substantial because it is a big program. Handles fixed costs well. Non-linear inventory costs are not well handled. That is one of the drawbacks के जो non-linear, जिस तरह हमने inventory carrying cost देख रहे हैं, they are non-linear, तो उनको इतनी अच्छी तरह handle नहीं करता, लेकिन fixed cost को, एक stable cost को बड़ा अच्छी तरीके से ये multiple integer programming handle करता है। That is a software जिसके थ्रू आप इसको run कर सकते हैं। So there are multiple ways जिस तरीके से एनालिसिस कंडक्ट किया जा सकता। You see, so the point is कि वैसे by the way normally inventory carrying costs are non-linear in many cases. This is one of the drawbacks that is in mixed integer programming के अंदर वो आ जाता है, क्योंकि जैसे हमने अभी तक जितने हमने inventory carrying cost के कर्व्स देखे हैं, they are increasing at a decreasing rate. They are non-linear basically, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा inventory carrying cost establish करते हैं, there is a trade-off between आपकी total cost कर्व भी downward sloping और inventory carrying cost आपकी स्टार्ट में बड़ी स्पीड से इंक्रीज करती है, क्योंकि देयर आर फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्वड आल्सो, फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन जो क्वांटिटी आप ज़्यादा स्टोर करना शुरू करते हैं वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका कर्व इस डायरेक्शन में चेंज होता जाता है। दैट इज़ वाई देयर आर नॉन लीनियर इन्वेंट्री कॉस्ट। लेकिन इस प्रोग्राम का भी एडवांटेज है। सो फैसिलिटी लोकेशंस के हिसाब से हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को भी एक्सप्लोर किया एंड वी हैव आइडेंटिफाइड दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, फैक्टर रेटिंग मेथड, मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग जो आपको दूसरे कोर्सेज में बड़े टेक्निकली और बेहतर तरीके से समझाई जाएगी, ख़ास तौर पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिकली उस डोमेन का ही आता है। लेकिन हमने ये देखा दैट लोकेशन इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। जो हमने वो शुरू में ट्राइंगल देखा था उसमें लोकेशन स्ट्रेटेजी एंड लोकेशन डिसीजंस के अंदर देयर आर मल्टीपल मेथड्स, और यही चीज़ हम हर उसके कस्टमर सर्विसेज के अंदर भी हमने देखा, एनालिसिस किया, फिर हमने उसी ट्राइंगल के हमने लोकेशन स्ट्रेटेजी भी कर लिया। अभी हमारा इन्वेंट्री और एक और पॉइंट रह गया जिसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट बेसिकली डिसीजंस। तो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी या ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो बेसिकली लोकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसको हमने इस पूरे चंद लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रांसपोर्ट।
द फोर्थ पार्ट ऑफ दैट ट्रायंगल। हम लोगों ने कस्टमर सर्विसेज भी कवर कर लिया, हम लोगों ने लोकेशन भी कवर कर लिया, वी आर मूविंग टूवर्ड्स ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आई गेस इन्वेंट्री वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दैट ट्रायंगल। एक चीज़ याद रखें, जब भी स्लाइड्स में इस किस्म की बड़ी स्लाइड आती है जिसमें ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल्स लिखा हुआ है, या बेसिकली जब पिछली स्लाइड्स में आपकी लोकेशन स्ट्रेटेजी लिखा हुआ था, तो इट इज़ स्टार्ट ऑफ अनदर चैप्टर, right? It is start of another chapter. Now, transport is an important aspect of overall the logistics management. It is obvious from the subject. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बहुत एक मेजर कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है आप लोगों को अपने बिजनेस के लिए। It is almost 1/3 to 2/3 of every the total logistics cost, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। Now, इसके नीचे एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब मुझे कहीं से मिल गया, व्हेन द चाइनीज राइट द वर्ड क्राइसिस दे डू सो इन 2 कैरेक्टर्स, वन मीनिंग डेंजर, द अदर मीनिंग अपॉर्चुनिटी। आई होप यू गाइस रिमेंबर जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, तो यूपीएस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, और शुरू के यूपीएस का जब आइडिया आया तो एक लोकल यूपीएस बनने शुरू हुए। जब लोकल यूपीएस बनने शुरू हुए तो चाइनीज अगेन फाउंड एन अपॉर्चुनिटी इन दैट, और बहुत सारे चाइनीज यूपीएस ने मार्केट को आके फ्लड कर दिया। नाउ चाइनीज यूपीएस मेरे ख्याल में इस वक्त मैक्सिमम अमाउंट में सेल होते हैं। और उस दिन मैं इसके बारे में दोबारा सोच रहा था, मैंने आप लोगों को एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाया था, आई होप यू रिमेंबर दैट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। और मैंने कहा था कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड है कि आपके हर लाइफ साइकिल स्टेज के ऊपर आपकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है। तो जब पाकिस्तान में बिजली का इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में एक नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुई और एक बहुत स्पीड से उसकी ग्रोथ हुई यूपीएस की, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए यूपीएस और बाद में फिर सोलर पैनल्स, उनकी बहुत स्पीड में ग्रोथ हुई और अब वो ऑलमोस्ट मैच्योरिटी की स्टेज में आने शुरू हो गए। और पीपल नो कि जी ये प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन, वो रेगुलरली मार्केट में सप्लाई की जा रही है। उसी हिसाब से सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी भी चेंज होती गई, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी चेंज होती गई। तो जिस तरीके से चाइनीज यूपीएस पाकिस्तान में पहुंचे जितनी जल्दी और जिस तरीके से उनको यूज किया गया और उनकी सर्विसेज पहुंच गई, देयर आर फॉर एग्जांपल होमेज का यूपीएस है, उसकी सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स। सो द पॉइंट इज कि जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है दैट प्लेड अ मेन रोल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज यूपीएसएस इन पाकिस्तान इन दोज टाइम्स व्हेन इट वाज नीडेड एंड वेयर इट वाज नीडेड। जस्ट थिंक ओवर इट। मैंने ये एग्जांपल सिर्फ इस वजह से दी कि जब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था इस स्लाइड में, दैट व्हेन द चाइनीज राइट द वर्ड क्राइसिस दे डू सो इन 2 कैरेक्टर्स। आप यू नो कि चाइनीज के वर्ड्स के कैरेक्टर्स होते हैं रादर देन वर्ड्स, तो वो इसको उस कैरेक्टर से भी लिखते हैं कि जिसका मतलब डेंजर होता है और उस कैरेक्टर से भी लिखते हैं जिसका मीनिंग अपॉर्चुनिटी होता है। दैट इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम सम प्लेस। तो अब हम दोबारा अपने उस प्लानिंग ट्रायंगल के ऊपर आ गए। हमने स्टार्ट किया कस्टमर सर्विस गोल्स से, जिसके अंदर हमने मेन फोकस किया द प्रोडक्ट के ऊपर। फिर हम आगे लोकेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें हमने किया लोकेशन डिसीजंस हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल्स। द बुक इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। बोला कि ये जो बुक मैंने आप लोगों को अलॉट की है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। आई वुड रिकमेंड कि आप गो थ्रू करें इसमें से, क्योंकि इसमें से सारी चीज़ें इस कोर्स में नहीं कवर हो सकती। नेवर एक्सपेक्ट कि एक टीचर जो क्लास में भी पढ़ाने आता है वो बुक A to Z आपको पढ़ा के चला जाएगा। सिर्फ उससे ग्लांस थ्रू करते हैं एक, और दूसरा चंद जो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं वो हम लोग कवर करते हैं। उसकी एडवांस फॉर्म्स हैं जिसको आगे आप मजीद पढ़ के भी समझ सकते हैं। जब आपकी फंडामेंटल फाउंडेशंस बन जाती हैं तो एडवांस डिस्कशन भी की जा सकती है आगे, क्योंकि एक किताब के अंदर मल्टीपल एरियाज कवर हो रहे होते हैं, लेकिन एक कोर्स के अंदर आपने उस कोर्स के ऊपर फोकस रहना होता है। जैसे हमारा फोकस इस वक्त लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के ऊपर है। नो डाउट लोकेशन, ट्रांसपोर्ट, कस्टमर सर्विस गोल्स एंड इन्वेंट्री आर आल्सो डिस्कस्ड इन दैट। लेकिन जब मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मार्केटिंग के अंदर भी कस्टमर सर्विस गोल्स और आपकी इन्वेंट्री और लोकेशन वगैरह डिस्कस होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब ऑपरेशंस पढ़ते हैं तो ऑपरेशंस वाले लोकेशन और उसकी ख़ास तौर पे ये जो नेटवर्क प्लानिंग प्रोसेस है और लोकेशन डिसीजंस हैं, इसकी जो प्रोग्रामिंग वाली साइड है वो भी डिस्कस करते हैं वो लोग। शायद वो लोग कस्टमर सर्विस गोल्स की तरफ इतना ना है, लेकिन द पॉइंट इज कि जो पूरा बिजनेस की यूनिट है वो ये सब कुछ इकट्ठे कर रहा होता है। वो मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, फाइनेंस सब कुछ इकट्ठा देख रहा होता है एक्चुअली ऑन ग्राउंड। लेकिन हम सब्जेक्ट में वो लाइनें लगा रहे होते हैं कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस।
for people to understand the concepts easily. So now we are moving towards transport strategy. Transport strategy में सबसे पहले we would be discussing the fundamentals of transport. It is an interesting area. अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन यू गो टूवर्ड्स, खाली देखने लगे कि डेवलपिंग और एक डेवलप्ड कंट्री में क्या फर्क है, या एक अंडर डेवलप्ड, नॉट आजकल हम डेवलपिंग नहीं कहते, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कह देते हैं. एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में और एक डेवलप्ड कंट्री में क्या डिफरेंस है. वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इज कि डेवलप्ड कंट्री में जो एक बंदा किसी जगह पे चाहे अर्बन या रूरल एरिया के अंदर बैठा हुआ है, वो कोई प्रोडक्ट किसी टाइम पे कंज्यूम करना चाहता है कर सकता है. जबकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में इफ देयर इज एन इंडिविजुअल, वो एक लिमिटेड अमाउंट की क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता है जो उसके गिर्द प्रोड्यूस की जा रही है. जो हमने बहुत शुरू की एग्जांपल ली थी, हमने पुराने टाइम्स की बात की थी कि एक ज़माने में लोग सबसिस्टेंस इकोनॉमीज के अंदर रहते थे. सबसिस्टेंस इकोनॉमीज मींस कि वहीं पे एग्रीकल्चर है, वहीं पे कैटल है, वहीं पे शूज बन रहे हैं, सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहे हैं. गांव टाइप एनवायरनमेंट जिसके अंदर लोग सब कुछ खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. आजकल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपके फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी सबसिस्टेंस इकोनॉमीज में उनको कह रहा हूँ जहाँ पे लोग फार फ्लंग एरियाज के अंदर वो फॉर एग्जाम्पल वो जो आप कह सकते हैं कबीलों में रह रहे हैं, और वो सब कुछ खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग कहीं जॉब नहीं कर सकते, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगी, वो वहाँ से चीज़ें प्रोडक्ट्स उधर डिलीवर नहीं की जा सकती. जैसे ही उधर आप एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी कन्वर्ट होते होते इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह तो दुनिया एक्सपैंड की है. तो अगर आप डेवलप्ड और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड में देखें तो जितनी ज़्यादा डेवलप्ड होगी उतनी ज़्यादा एक्सेस होगी चीज़ों की. और वो एक्सेस क्यों होगी? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंटली डिफाइंड होगा, इफेक्टिव होगा. जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्टिव होगा उतना ज़्यादा चीज़ों की मोबिलिटी आसान हो जाएगी. अगर इस पर्सपेक्टिव से आप लोग देखें तो जैसे मैं आप लोगों को पिछले ही चंद लेक्चर्स में कोई एग्जांपल दे रहा था कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आपके, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम दूसरे मुल्कों के फ्रूट और वेजिटेबल खा सकेंगे अनलेस वी गो ओवर देयर. लेकिन अब कितनी आसानी से डिफरेंट मुल्कों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपोर्ट किए जाते हैं. आई वाज इन ऑस्ट्रिया और वहाँ पे हम लोगों ने इंडियन आम भी खाए. आम का सीज़न आया, आई गेस एक वो ब्राज़ील वगैरह से आते थे, वो इतने बड़े बड़े आम तरबूज की शक्ल के होते थे, गोल बिल्कुल, और दूसरी तरफ इंडियन आम आया करते थे. इंडियन शॉप से पाकिस्तानी आम लेते थे, रादर नॉट इंडियन आम, बल्कि पाकिस्तानी आम आया करते थे वहाँ पे, और हम लोग भागते थे उसके पीछे, बड़े महंगे मिलते थे वो अभी तक याद है. लेकिन उस ज़माने में सख्त तरसते थे इनकी चीज़ों के लिए. सब स्टिल द पॉइंट इज़ कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि चीज़ें पॉसिबल है वहाँ पे आना, राइट, एक ज़माने में. नाउ द पॉइंट इज कि ये पेरिशेबल आइटम्स भी डिलीवर किए जा सकते हैं. ये इफेक्टिवनेस है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ये इफेक्टिवनेस है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के एक सेगमेंट की, यानी कि जिसका नाम ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात कर, हम ट्राइंगल के अब इस साइड पे आ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर आ चुके हैं. फिर सेकेंड एडवांटेज इन पेरिशेबल आइटम्स की वजह से दैट इज इंक्रीज कंपटीशन. आपकी लोकल प्रोड्यूसर आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है तब तक जब तक कंपटीशन नहीं आ जाता. हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, खैर इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम बट इट इज़ रिलेटेड टू अ लैक ऑफ कंपटीशन. मोबिलिंक की सिम जो है दैट यूज टू भी, जहाँ तक मुझे याद है 10,000 या 5,000 की होती थी, मैंने 3,500 की भी देखी हुई है. और उसमें आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल चार्जेस भी हुआ करते थे उस दौर में, कि आपको कॉल करे तो आपको कॉल पड़ती है. लेकिन जो जो कंपटीशन आ गया प्राइसेस नीचे चली गई. अब 100 रुपए की सिम मिलती है और उसमें 100 रुपए क्रेडिट होता है तकरीबन, और समथिंग लाइक दैट. द पॉइंट इज कि जो जो कंपटीशन आया, सर्विसेज की वैल्यू एडिशन, अब आपको क्या क्या सर्विसेज ऑफर नहीं कर, दे आर कंपीटिंग टू विन यू. यानी कि आपस में फर्म से कंपटीशन हो गया अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए. और वो किस तरह कर सकते हैं, जिसके पास जितने ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे वो और कस्टमर्स को लेके आएगा, जो अच्छी सर्विसेज देगा उसके कस्टमर ज्यादा होंगे, एंड दे आर कंपीटिंग ऑन दोज ग्राउंड्स. तो इससे प्राइसेस भी नीचे जाएंगी, इससे क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, राइट. सो द पॉइंट इज कि जब सिंगल प्रोड्यूसर है वो डिफरेंटली बिहेव करता है और प्रोड्यूसर कंपटीशन में डिफरेंटली बिहेव करता है. अब अगर फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर एक सोप इंडस्ट्री एक ही खास टाइप की है, वो खुद ही बना के सोप डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको आपने मोनोपोली दे दी, आपने उसे प्रोटेक्ट कर दिया कि बाहर से कंपटीशन नहीं आएगा. तो जब तक बाहर से कंपटीशन नहीं आने देंगे तब तक तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है कंज्यूमर्स को, तब तक वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस देगा.
लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन को ओपन करेंगे, उसका कंपटीटर आएगा और मार्केट शेयर गेन करना शुरू कर देगा। एज सून एज द कंपटीटर स्टार्ट्स गेनिंग द मार्केट शेयर, ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी नीचे चली जाएंगी और ऑटोमेटिकली क्वालिटी भी ऊपर चली जाएगी। सो दैट इज व्हाट इंक्रीज कंपटीशन एंड एक्सेस, दैट इज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बैरियर तो एग्रीड, बैरियर मैंने हटाने की बात की कि बैरियर हटाएंगे, लेकिन अगर बैरियर हटाने के बावजूद अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई हो तो चाइना से प्रोडक्ट पाकिस्तान में आने के बावजूद पाकिस्तान से एक्सपेंसिव हो, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं, दे आर चीपर देन द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग, इन सर्टेन केसेस चाइनीज प्रोडक्ट्स आर चीपर देन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Then it can exploit the economies of scale. Economies of scale किस तरह? Economies of scale का कॉन्सेप्ट ये कि जो मास प्रोडक्शन है, जो लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करते हैं, उससे एवरेज कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती जाती है। एवरेज, नॉट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट द सम ऑफ दीज टू, यानी कि एवरेज कॉस्ट रिड्यूस, बॉल शेप का एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है। तो जो यहाँ पे वो मिनिमम होता है, उससे पीछे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं, जहाँ पे बाउल शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इंक्रीज करना शुरू करता है, वहाँ पे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं। इन दोनों के अपने रीजंस होते हैं, देयर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व कि मैं आपको टोटली दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। बट लेट्स फोकस ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर इसके अलावा डिफरेंस होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का। खैर उनको अभी छोड़ देते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप इज लाइक यूजिंग सेम फैसिलिटी एंड प्रोड्यूसिंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द सेम फैसिलिटी, बट वी आर नॉट टचिंग दैट। मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ, कहता भी जा रहा हूँ कि नहीं बताएंगे, नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज़्यादा डिटेल में, लीव इट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर गाड़ियों के पार्ट्स की बात करते हैं तो बजाय एक कंट्री अगर स्पेशलाइज करती है किसी एरिया के अंदर और वो कहती है जी मैं सिर्फ टायर बनाऊंगा, और गाड़ियों के सारे टायर्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम ताइवान के अंदर या मलेशिया के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, बनते हैं, मलेशियन टायर्स होते हैं, तो मलेशिया में बनते हैं, तो वही इतनी मास प्रोडक्शन कर रही है कि वो सारी कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करती फिर, जहां जहां कार के प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां जहां गाड़ियां असेंबल हो रही हैं, वहां पे उनके पार्ट, उनके टायर्स जा रहे हैं। या फॉर एग्जांपल जहां जहां जो है वो कार्बोरेटर के या कोई एक पार्ट, इवन अ सिंगल पार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक वो वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है और एक वेट लूजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है। जो वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें फैसिलिटी की जगह पे लग जाती है और डिफरेंट पार्ट्स वहां आके असेंबल होते हैं। जैसे पाकिस्तान में कार्स असेंबल होती हैं, जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें बाय द वे असेंबल होती हैं, बन के पार्ट्स कहीं और से आते हैं, मोबाइल फोन्स इवन के नहीं, मोबाइल फोन्स आई एम नॉट श्योर, लेकिन काफी सारी चीजें पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं। इस तरह प्रोड्यूस नहीं कर रहे लेकिन असेंबल कर रहे हैं। असेंबलिंग फैसिलिटी लग जाती है, प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं लगती। असेंबलिंग फैसिलिटी इज समहाउ अ प्रोडक्शन फैसिलिटी। लेकिन जैसे वो सबसे बड़ा जो डिबेट है आजकल कि अभी तक पाकिस्तान ने एक इंजन भी नहीं बनाया, हम कार्स खाली यहाँ पे असेंबल करते हैं, हमारे पास अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आज तक हम एक इंजन खुद से बना सकें बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से। दैट इज अ सेपरेट डिबेट अगेन। तो अब जब वो वेट गेनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, कार के पार्ट्स यहाँ पे आके असेंबल होने, और खाली पाकिस्तान में नहीं, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज में जाके असेंबल होने, तो एक वो फैसिलिटी है जो वो सारे, जो एक खास पार्ट है जो बनाई जा रही है, वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रही है, उन सारी फैसिलिटीज को सप्लाई कर रही है, और उसकी अपनी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का प्रोडक्शन कॉस्ट के रिड्यूस करने का सिर्फ और सिर्फ तभी फायदा है जब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इफेक्टिव हो। अगर फॉर एग्जांपल वो एक जगह पे प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर है, तो जिस जगह पे वो पहुंच रही है वो फैसिलिटी यही देखेगी कि मुझे कहां से परचेज करना चीपर पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल वो एक चीप क्वांटिटी में वो चीप प्राइस के ऊपर एक लोअर कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके अपने जिस जगह पे वो रीजन में फैसिलिटी लोकेटेड है, कार प्लांट है, वहां पे वही प्रोडक्ट थोड़ी महंगी बन जाती है। लेकिन जब दोनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाली जाती है तो ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होती है और ऐड करके टोटल कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर इससे कभी भी नहीं मंगाएगा, वो लोकल प्रोड्यूसर से मंगवाएगा। सो दैट वुड मीन कि ये अगेन पॉसिबल है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्टिवनेस। फिर इसके बाद इंक्रीज कंपटीशन के सेंस में रिड्यूस्ड ऑयल प्राइसेस का, रिड्यूस प्राइसेस का भी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ये, खैर आई हैव डिस्कस दैट इन इंक्रीज कंपटीशन एंड एक्सेस इन टर्म्स ऑफ पेरिशेबल आइटम्स एज वेल, जनरली एज वेल, लेकिन रिड्यूस प्राइसेस भी उसी का फैक्टर है जो मैंने डिस्कस किया था। जैसे हम लोग आजकल ऑयल एंड मिडिल ईस्ट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि
दुनिया जहान में ऑयल सप्लाई किया जाता है मिडल ईस्ट से सप्लाई किया जाता है। कंट्रीज की अपने पास भी ऑयल मौजूद है लेकिन वो दूसरी मिडल ईस्ट से मंगवाई जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? वन ऑफ द रीजंस इज कि वो उस कंपटीशन की वजह से, जैसे पूरी मार्केट क्योंकि एक्सपैंड कर चुकी है, ग्लोबलाइज हो चुकी है, तो ऑयल तो जो बेसिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो हर एक की नेसेसिटी है आजकल, ऑलमोस्ट नेसेसिटी है, नॉट द टिपिकल वर्ड नेसेसिटी, बस एक ओवरऑल इकोनॉमी को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है वो। जब वो रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है ऑयल रिक्वायर्ड है। जब ऑयल रिक्वायर्ड है तो मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है, मिडिल ईस्ट के निकालने की कॉस्ट सबसे कम है, वो मास लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लेकिन वो निकालने की कॉस्ट तो कम है। लेकिन अगर डिलीवरी की कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो उससे बेहतर है मुल्क खुद से ऑयल निकाल लें। कुछ कंट्रीज के पास तो रिजर्व्स है नहीं, लेकिन जिनके पास रिजर्व्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर डिलीवरी कॉस्ट, देयर आर सम ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक रीजंस एज वेल, लेकिन उसको भी सारी चीजों को होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, जब हम इकोनॉमिस्ट जहां भी कहीं फंसते हैं हम कह रहे थे होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, जिंदगी आसान कर लेते हैं अपनी। खैर, होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, तो अब वो जो ऑयल सप्लाई किया जा रहा है, जो ऑयल आ रहा है वहां से, वो रिड्यूस कॉस्ट के ऊपर ही आएगा, ओनली देन दैट वुड बी इफेक्टिव, ओनली देन इट कैन बी सप्लाइड। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस ऑयल की ऑयल टैंकर्स के थ्रू जो दुनिया जान में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अगर इंक्रीज कर जाती है तो फिर इसका मतलब है मिडिल ईस्ट से ऑयल मंगाने से बेहतर हम खुद अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करके वहां से निकाले कंट्री के अंदर यूज कर लें, जिनके पास है ऑब्वियसली। तो दैट इज बिकॉज रिड्यूस प्राइसेस आर बिकॉज ऑफ कंपटीशन, राइट। जब फर्म्स आपस में compete करेंगी, जब डिफरेंट कंट्रीज उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी, एक ही जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की बहुत सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और उसके अलावा वेनेजुएला से भी ऑयल निकलता है। द पॉइंट इज कि अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इफेक्टिव है और दुनिया जहान में रीच आ गई, एक्सेस मौजूद है, जो हम इसका दूसरा पॉइंट है जो हम इस स्लाइड का, access or because of access to different countries, because of effective transport and and results into increased competition, and that results into reduced prices. Moving on, so I have highlighted the importance of effective transport system, क्योंकि ये जो सारी दुनिया की इस वक्त ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर जो सारा कंपटीशन और रिड्यूस प्राइसेस और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज wholly and solely dependent upon effective transport network. That is why it is a very important part of that triangle. Now transport system किन चीज़ों पे देखा जा सकता है, उसके कुछ प्राइस, उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, कुछ उसके कॉस्ट पैरामीटर्स हैं। परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है कि एवरेज ट्रांजिट टाइम क्या है, कितना टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हम इस स्लाइड को अगेन नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो हम इसको काफ़ी डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे एक दफ़ा। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हैं? एवरेज ट्रांजिट टाइम, एक कि कितना एवरेज कितना टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिट प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा पैरामीटर क्या है? वेरिएबिलिटी इन द ट्रांजिट टाइम, कि ट्रांजिट टाइम जो है वो फॉर एग्जांपल अगर 5 डेज है जैसे Amazon.com का, तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा तो फ्लक्चुएट नहीं करता। अगर उसका वेरिएंस बहुत हाई होगा, वेरिएंस आई होप यू अंडरस्टैंड, डेविएशन बहुत हाई होगी either in negative direction or in positive direction, then that would be lower performance. अगर वो एक ही वेरिएबिलिटी उसकी कम है, that would be on average अब आप कह सकते हैं कि गुड वो परफॉर्मेंस है उसकी ट्रांजिट की। then loss and damage, another important aspect to gauge the performance of the transport system. Then there are other factors including availability, capability, frequency of movement and various less tangible services जो transport system provide करता है। ये सारे उसके परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स हैं। फिर उसके कॉस्ट के पैरामीटर्स हैं। देयर इज लाइन हॉल कॉस्ट। लाइन हॉल वुड मीन कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कॉस्ट, बेसिकली आपस में बेसिकली डिस्टेंस जब ज्यादा होता है खासतौर पर उस वक्त यूज करते हैं, लेकिन विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑन। देन देयर इज टर्मिनल एंड लोकल कॉस्ट, कि जब आपके लोकल पॉइंट से आप किसी जगह पहुंचते हैं तो दोनों पे जो कॉस्ट इनकर होती है, लोडिंग की, आपकी टैक्सेशन की, इस तरह की डिफरेंट कॉस्ट जो आपकी, बेसिकली हम लोग खाली इस वक्त एक लिमिटेड डोमेन के अंदर सोच रहे हैं। अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, जब दूसरी कंट्रीज में प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं तो वहां पे भी कॉस्ट इनकर होती हैं। जब आप फॉर एग्जांपल अगर एक फ्री ट्रेड जोन के अंदर एंटर होते हैं वहां पे, ये खैर चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं, विल कम टू दैट। देन देयर आर एक्सेसोरियल और स्पेशल चार्जेस, इनको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। वी आर एट द एंड ऑफ अवर टाइम, तो एक दफा लेट मी गो थ्रू जो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं इस लेक्चर के अंदर। लेट मी गो बैक टू डिफरेंट स्लाइड्स जो हमने डिस्कस की। हमने कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस सबसे पहले डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने बताया कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक लोकेशन के ऊपर इनकर होती है,
उसको देखते हैं कि जहाँ पे मिनिमम होती है आपके खास वॉल्यूम के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर आप लोकेट करके प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने मल्टीपल लोकेशन मेथड्स का डिस्कस किया ब्रीफली कि मल्टीपल लोकेशन मेथड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ सबसे ये होती है कि आपने डिफरेंट कॉस्ट के ट्रेड ऑफ देखने होते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। फिर हमने ह्यूरिस्टिक्स को डिस्कस किया कि आपके लोकेशन कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स को आपने देखना होता है। इन ह्यूरिस्टिक्स आर बेसिकली रादर जजमेंटल कि आप जब आपके मेथड्स आपको सर्टेन आइडियाल दे देते हैं तो उसके बेस पे आप उन गैप्स को रिड्यूस करने के लिए जो फाइनल डिसीजन तक आपको जजमेंट कॉस्ट लेते हैं, दीज आर बेसिकली ह्यूरिस्टिक रूल ऑफ थंब आप कह सकते हैं इनको, सर्टेन थिंग्स यू नो। इसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ डिस्कस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड की। फिर हमने एक मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया विच आई सेड दैट वुड बी taught to you in greater detail in the course of operations management. Then I came to another important aspect of the same triangle, planning triangle, जिसमें transport fundamentals आ जाते हैं, as you see that it is written in red in your slide. फिर हमने इसकी importance and effectiveness को discuss किया कि because the transport effectiveness of transportation network has actually resulted into this level of globalization. जब आप ये कहते हैं कि जी increased competition है, reduced prices है, improved quality है, that has resulted from only and only, not only and only, but ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन दैट। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बीच में से निकाल दें, उसकी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर दें, तो फिर चाइना से आईवी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लोकल मेड प्रोडक्ट से एक्सपेंसिव होगी। अगर आप वो लें तो उसकी क्वालिटी, फॉर एग्जांपल जो हम कहते हैं जी पेरिशेबल आइटम्स हैं, अब हम वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो भी हम इम्पोर्टेड कंज्यूम कर सकते हैं। फिर जो आपकी फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो एक्सप्लॉइट करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वो एक खास लार्ज अमाउंट की क्वांटिटीज प्रोड्यूस करके दुनिया जाम में एक्सपोर्ट करते हैं, खासतौर पे इंटरमीडिएट गुड्स, तो दैट इज बेसिकली ओनली पॉसिबल in the existence of an effective transport system. Now in the end I explained a little bit about the transport system कि इसकी परफॉर्मेंस और कॉस्ट क्या है, जिसको हम अगले लेक्चर में लाजमी डिस्कस करेंगे। टाइम हमारा एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, आप लोगों ने भी शुक्र किया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।